آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج آپ لوگوں کے لیے میں حاضر ہوں ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے وہ بہت ہی باکمال اور بہت ہی شاندار ہونے والا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کافی سارے ماڈل پیپر جو ہے وہ سولو کیے ہیں۔ آپ کا فیڈ بیک اور آپ کا جو پیار ہے وہ ہمیں کافی موٹیویٹ کرتا ہے، اور اسی کے لیے آپ لوگوں کے لیے پھر سے میں حاضر ہوں ایک نئے ماڈل پیپر کے لیے، جو آپ کا یو پی ٹی جی ٹی اردو کے امتحان کے لیے ریگارڈنگ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2-3 ماڈل پیپر جو ہے وہ کر لیے ہیں، اور آج ہمارا جو ہے وہ ایک نیکسٹ جو ہے وہ ماڈل پیپر ہے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے اس سیشن کو شروع کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم لوگ پچھلے سیشن کی طرح ہی 125 سوال ہوں گے، کیونکہ آپ کے ایگزام میں بھی 125 سوال ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگ خود سے بھی تیاری کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ اسکور کتنا بن رہا ہے اور کتنا جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ہماری ای بک پرچیز کر سکتے ہیں، جو اسپیشل یو پی ٹی جی ٹی کے لیے ہے، جس میں تقریباً 3000 کوشچنس ہیں، جس میں آپ کا پی وائی کیو ہے، پریویس ایئر پیپر ہے، اس کے علاوہ اس میں ایم سی کیوز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیمپل پیپر یعنی کہ ماڈل پیپر بھی اس میں جو ہے وہ اویلیبل ہے، جس کی قیمت محض 99 روپے ہے۔ آپ لوگ اسے یا تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں جا کے پرچیز کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہمارا نمبر ہے 9045220432، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9045 220 اور 432۔ اس نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر کے اپنی جو ای بک ہے وہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے اس سیشن کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے موبائل کی یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جو ہے وہ تیار ہو جائیے آج کے اس سیشن کو یادگار بنانے کے لیے، کیونکہ آگے آنے والے وقت میں آپ کا جو ہے وہ بہت اہم سوالات جو ہے وہ اس میں دیے گئے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے آپ کے موبائل کی یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر، جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کو بتانا ہے نعت، قصیدہ، منقبت یا حمد۔ تو اللہ کی تعریف ہم لوگ کرتے ہیں کس میں؟ حمد میں، آپشن 4 ہو جائے گا۔ یہیں پر اللہ کی جگہ اگر نبی آ جاتا تو آنسر ہو جاتا آپشن اے یعنی کہ نعت۔ نعت کے علاوہ صحابہ کرام آ جاتے تو اس کا ہم لوگ کہتے ہیں منقبت۔ اور انسان جب خود کے لیے دعا کرتا ہے یا خود کی تعریف کرتا ہے یا خود کی حاجت کے لیے خدا سے دعا مانگتا ہے تو اسے ہم لوگ مناجات کہتے ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول سے، افسانہ سے، خاکہ سے یا سوانے سے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کا جو تعلق ہے وہ ناول سے ہے، جو علی گڑھ تحریک کے زیر اثر یہ صنف جو ہے وہ اردو ادب میں آئی، اور اس کا آغاز ہوا 1869 میں، کیونکہ جب ڈپٹی نذیر احمد نے اپنا پہلا ناول لکھا جس کا نام تھا مرات العروش۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان کیا ہے؟ تنقید، شاعر، تحقیق یا طنز و ظرافت؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، ان کا تعلق جو ہے وہ طنز و ظرافت سے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ تو جنت سے کسے نکالا گیا تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، حضرت آدم کو، جن کو پہلا نبی مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، مولوی ذکاء اللہ یا مولوی عبدالصمد؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اردو کا جو پہلا خاکہ نگار ہے وہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ، اور انہوں نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا خاکہ لکھا تھا نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، جو انہوں نے 1927 میں لکھا تھا۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالحق بھی جو ہے وہ ایک خاکہ نگار ہے، ان کے بہت اہم خاکے جو ہے وہ ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، اور اسی میں سے جو ہے ایک اور مشہور ہے جس کا نام ہے چند ہم عصر، اور یہ سوال آتا ہے کہ اس میں کتنے خاکے ہیں؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں 14 خاکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی؟ آسان سوال ہے، تو 1938 لاہور میں ہوئی، آپشن فرسٹ جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نشان اوقاف میں وقفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مختصر ٹھہراؤ، طویل ٹھہراؤ، رابطہ یا خاتمہ؟ تو آنسر ہو جائے گا طویل ٹھہراؤ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ مؤنث کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ استری لنگ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا لنگ بدلو، تو اسی میں استری لنگ اور پلنگ ہوتے ہیں، جسے ہم لوگ اردو میں مذکر اور مؤنث کہتے ہیں۔ تو اس میں 3 مذکر ہیں اور 1 مؤنث ہے، اسی کی آپ کو پہچان کرنی ہے۔ کتب خانہ بڑا ہے، یہ مذکر ہے۔ خوشبو اچھی ہے، یہ مؤنث ہے۔
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि खुशबू इसमें मुअन्नस है। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम किससे हासिल की? मीर हसन से, सौदा से, फ़ानी से या फैज़ अहमद फैद से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर हसन से। ये मीर हसन वो नहीं है जिनकी मसनवी सहरुल बयान है, ये अलग है, और ये वाले मीर हसन जो है वो अलग है। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा में, दिल्ली में, रामपुर में या सियालकोट में? तो आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब जो है वो आगरा में पैदा हुए। कब हुए ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, 1797 में, 1797 में। और ये दिल्ली आ गए थे कब? 1811 या 1812 में, क्योंकि इनकी शादी दिल्ली में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इसमें कौन सी सनत है? तजाद है, तलमी है, तालील है या मनाजिर है? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तलमी है, क्योंकि इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की माँ यानी कि इब्ने मरियम का नाम आया हुआ है। किसी भी नबी के ताल्लुक़ से या किसी नबी की चीज़ से या नबी की कोई किस्से से अगर कोई शेर होता है तो उसमें 100% क्या होती है? तलमी होती है। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद के पहला अफसाने मजमू का नाम बताइए। प्रेम पच्चीसी, आखिरी तोहफ़ा, वारदात या सोज़े वतन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सोज़े वतन। और सोज़े वतन जो है वो कब शाये हुआ था? 1907 में, और इसे ही जो है वो बरतानिया हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था 1908 में। और इसमें कितने अफसाने शामिल हैं? तो सीन, वाव, ज़ा, वाव, ता और नून। तो इसमें आप लोग देखेंगे इसमें 6 हर्फ जो है वो आए हुए हैं। वाव 2 बार आया है तो इसलिए इसे हम लोग 1 बार काउंट कर लेते हैं, तो यानी कि टोटल हुए 5। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि सोज़े वतन में कितने अफसाने शामिल हैं? 5। और उनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो है वो इसी में शामिल है, तो आप लोग ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और यहीं पर इसी के साथ साथ ये पहला हुआ। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आखिरी कौन सा है, तो आखिरी वारदात है, 1936 में मुकम्मल हुआ, 1938 में वो शाये हुआ, और इसमें 13 जो है वो क्या है? अफसाने शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसाला असबाब बगावत हिंद का मकसद क्या था? तो इसका मतलब था मुसलमानों के मुताल्लिक अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करना, और ये 1858 में शाये हुआ था, जो 1857 की गदर हुई थी उसके मुताल्लिक सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। अगला सवाल है, गुलशन हिंद क्या है? कसीदा, मसनवी, मरसिया या नज़्म? तो ये मसनवी है नुसरती की। आगे बढ़ते हैं। ज़हर इश्क जो मसनवी है शौक़ लखनवी की, वो पहली मसनवी है जो माफूकुल फ़ितर अनासिर से क्या है? पाक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, जिसका एक किरदार है महज़बी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं। और उसके बाद क्या था? सौदागरी करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत रत्न क्या है? कुनियत है, लक़ब है, उर्फियत है या ख़िताब है? तो आपने अगर पढ़ा होगा इसमें आम की और इसमें ख़ास की किस्मों में होता है, तो ये जो है वो भारत रत्न इसमें ख़ास की कैटेगरी में आता है। और इसमें ख़ास के जो है वो 5 अरकान होते हैं, जो कुनियत होती है, लक़ब होती है, उर्फियत होती है और ख़िताब होती है। इसके अलावा एक और होता है तखल्लुस। ये 5 जो है वो क्या हैं? इसमें ख़ास की इकसाम है, जिसे हम लोग इसमें मारफा के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें पूछा गया है कि भारत रत्न क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत रत्न जो है वो ख़िताब है, जो उर्दू अदब में सबसे पहले किसको मिला था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला था। कब मिला था? 1992 में, और इनकी वफ़ात हुई थी 1958 में वफ़ात हुई थी। और 1992 में उर्दू का पहला ख़िताब भारत रत्न जो है वो अभी तक सिर्फ एक ही इंसान को मिला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, जिनको हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर मानते हैं अपने मुल्क का पहला। और इन्हीं की यौम पैदाइश पर हम लोग एजुकेशन डे मनाते हैं 11 नवंबर को, एजुकेशन डे यानी कि शिक्षा दिवस जो है वो हम लोग 11 नवंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दाइम के क्या मायने हैं? तो इसका मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए यानी कि हमेशा। आगे बढ़ते हैं। इंशाइया क्या है? नावल है, मजमून है, अफसाना है या दास्तान है? तो इंशाइया मजमून होता है, ऑप्शन 2। गालिब बुरा ना मान जो वाइज़ बुरा कहे, मैं गालिब क्या है? तो ये फिर से कवायद का सवाल आ गया है। लक़ब है, तखल्लुस है, ख़िताब है या कुनियत है? तो ना तो कुनियत है, ना ख़िताब है और ना ही लक़ब है। गालिब जो यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है? तखल्लुस का। ऑप्शन ए 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, शायर रोमान किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 4, अख्तर शिरानी को जो है वो शायर रोमान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बागो बहार क्या है? खाका है, नोवेल है, दास्तान है या इंशाइया है? तो बागो बहार क्या है? दास्तान है, जो मीर अमन की लिखी गई है। 1801 में लिखना शुरू किया, 1802 में मुकम्मल हुई, 1803 में शाये होनी शुरू हुई और 1804 में ये मुकम्मल शाये हुई। आगे बढ़ते हैं, बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो दरवेशों की बात की जाती है तो आंसर हो जाता है 4, लेकिन अगर पूछा जाता है कि बागो बहार में कितने किस्से हैं तो आंसर हो जाता 5, क्योंकि एक आज़ाद बख्त का भी किस्सा है। और उसी में एक सवाल और आता है कि कौन से दरवेश का किस्सा सबसे तवील है और कौन से दरवेश का जो है वो सबसे मुख्तसर है? तो पहले दरवेश का सबसे तवील है और सबसे चौथे का जो है वो सबसे कम है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पांचों किस्सों में सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप लोग बता सकते हैं आज़ाद बख्त का। और आज़ाद बख्त में भी किसका? ख्वाजा शक परस्त का। शक का माने होता कुत्ता और परस्त माने होता पूजने वाला, इसलिए ख्वाजा शक परस्त जो है वो कुत्ते की पूजा करता था बागो बहार में। आगे बढ़ते हैं, इंसान के अंदर डैश का एहसास सबसे ज़्यादा कवी है? नफ़रत का, गम का, हुस्न का या हसर का? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हुस्न का। आगे बढ़ते हैं, मीर अमन का तखल्लुस क्या है? बहुत इजी सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि लुत्फ़, इनका जो है वो तखल्लुस है। आगे बढ़ते हैं, उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया? मौलवी मोहम्मद बाकिर, हयातुल्लाह अंसारी, ज़फ़र एलिया या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया? तो ऑप्शन में अगर कलकत्ते वाले आते जिनका नाम सुखदेव राव है और उसके अलावा जो है वो उनके साथी और थे, उनका नाम आता तो उनका लगाते, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा मौलवी मोहम्मद बाकिर। और इन्होंने 1836 में उर्दू का पहला अखबार निकाला, दहली उर्दू अखबार के नाम से। और ये किसके वालिद थे? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। आगे बढ़ते हैं, नशे की पहली तरंग किसका अफसाना है? सुहेल अज़ीम आबादी, सज्जाद हैदर यलदरब, अली अब्बास हुसैनी या किरशन चंद्र? क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका सही आंसर हो जाएगा सज्जाद हैदर यलदरब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार थे 1920 में। और इन्हीं की बेटी थी कुर्रतुल ऐन हैदर, और वहीं पर अलीगढ़ में ही उनकी पैदाइश हुई थी 1926 या 1927 में, और इंतकाल हुआ 2007 नोएडा में। आगे बढ़ते हैं, दर्जा झेल में से इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन सी है, यानी कि कॉमन नाउन कौन सी कहलाती है? ताजमहल, लाल किला, शहर या गोल घर? तो ताजमहल भी दुनिया में एक चीज़ है तो ये इसमें आम नहीं बल्कि ये इसमें ख़ास है। लाल किला भी एक है तो ये भी क्या है, इसमें ख़ास है। शहर बहुत सारे हो जाते हैं तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यानी कि शहर इसमें आम है। आगे बढ़ते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है? भाई की, रिश्तेदार की, उस्ताद और शागिर्द की या बाप बेटे की? क्वेश्चन नंबर 28 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बाप बेटे की। अगला सवाल, मदह के मायने क्या हैं? तारीफ़ के, तनकीज़ के, शिकायत के या बखालत के? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तारीफ़ के। किसी शख्स की तहरीर, तस्वीर को क्या कहते हैं? सवाने निगारी, खाका निगारी, इंशाइया निगारी या अफसाना? क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि खाका निगारी। और उर्दू में खाका निगारी किसको बानी माना जाता है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को जो है वो माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ख्वाजा हसन निज़ामी। यहीं पर मिट्टी का तेल किस में जलता है? तो आप लोग कह सकते हैं सर लालटेन में। तो लालटेन भी इंशाइया किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी का। लालटेन को जलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? दिया सलाई की। तो दिया सलाई भी किसका मजमून है? ख्वाजा हसन निज़ामी का। और जलाने के लिए जब हम लोग लालटेन का इस्तेमाल करते हैं दिया सलाई से, और दिया सलाई जब रात को जलती है, लालटेन जलती है तो उससे क्या हो जाते हैं? मक्खी मच्छर आ जाते हैं। तो मक्खी और मच्छर, ठीक है। और ये भी किसके? ख्वाजा हसन निज़ामी के। और जब मक्खी मच्छर आते हैं तो उनका क्या होता है? जनाजा भी उठता है। तो आपने पढ़ा होगा मच्छर का जनाजा भी एक मजमून है, वो भी किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी का है। और जब कोई मर जाता है तो उसको जीवित रखने के लिए हम लोग बर्फ़ में उसे रखते हैं काफ़ी देर तक, तो बर्फ़ भी किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी का जो है क्या है? इंशाइया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो उनके याद रख सकते हैं। इसके अलावा ईंट से ईंट भी किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी का ही इंशाइया है।
आगे बढ़ते हैं, तशबीब किस सिनफ शायरी का हिस्सा है? तो ये कसीदे का है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उर्दू में नावल लफ्ज़ किस ज़बान से आया? बरतानवी से, फ्रांसीसी से, जर्मनी से या इतालवी से? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इतालवी से। क्वेश्चन नंबर 34, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये दाग दहलवी का शेर है। नज़्म के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? आसान सवाल है, ऑप्शन 4 पिरोना। फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? गुलाम हम, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, डॉक्टर इबादत बरेलवी, सर सैयद अहमद खां या रतन नाथ शरशार? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रतन नाथ शरशार की तसनीफ़ है फसाने आज़ाद। तशबिया किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? ईजी है, ऑप्शन 4 अरबी का। आगे बढ़ते हैं, किस चीज़ को किसी ख़ास मुशाबहत की बिना पर किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार देना डैश कहलाता है? तशबिया, इस्तारा, किनाया या मजाज मुरसिल? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी कि तशबिया। और तशबिया के कितने अरकान हैं तो आप लोग बता सकते हैं। तशबिया के 5 अरकान हैं, इस्तारा के कितने अरकान हैं? 3, कनाया के कितने हैं? 6 और मजाज मुरसिल के कितने हैं? 24। तो इस तरीके से आप लोग इन सब के अरकान भी याद रख सकते हैं। और ये चारों किसके हैं? तशबिया, इस्तारा, कनाया और मजाज मुरसिल, ये हैं इल्म बयान के। तो इल्म बयान के कितने अरकान हैं? 4। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुगलिया हुकूमत के आखिरी बादशाह का नाम बताइए। बहादुर शाह ज़फ़र, ऑप्शन ए। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? सर सैयद अहमद खान ने की, गाज़ीपुर में 1862 में। अजाइबुल कसस किसकी तसनीफ़ है? आम इंसान की, शाह आलम सानी की, गालिब की या अल्ताफ़ हुसैन हाली की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये शाह आलम सानी की तसनीफ़ है अजाइबुल कसस, जिसका ताल्लुक़ मसनवी से है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की, फ़ारसी, हिंदी या अंग्रेज़ी? ऑप्शन ए तुर्की। अल्लामा इकबाल की मज़ार किस शहर में है? तो जहाँ पर वफ़ात हुई थी लाहौर में 1938, ऑप्शन 2। मलिकुश्शोरा का खिताब किसे अता हुआ? ज़ौक़ को, इकबाल को, गालिब को या हाली को? तो आंसर हो जाएगा ज़ौक़। हालांकि गालिब को भी मिला है लेकिन पहले जो है वो ज़ौक़ को मिला है। और किसने दिया था? तो आप लोग बता सकते हैं, ये बहादुर वो मोहम्मद शाह जो थे, अकबर आलम सानी ने, माफ़ कीजिएगा, अकबर शाह सानी ने जो है वो दिया था। अकबर शाह सानी ने दिया था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और गालिब को किसने दिया था? बहादुर शाह ज़फ़र ने, ज़ौक़ के बाद। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो किस सूफ़ी के मुरीद थे? तो इसमें ज़्यादातर आंसर जो है वो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आना था, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो लेकिन हमें आंसर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देना होता है। तो वो उनके मेन मुरीद थे, लेकिन उनके अलावा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी भी जो है वो अमीर खुसरो से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रिसाला आजकल के मुदीर कौन है? जो दिल्ली से निकलता था सरकारी रिसाला, जिसका आंसर हो जाएगा जोश मलिहाबादी। और ये उन्होंने 1942 में जो है वो इसको जो है वो अलग हो गए थे और उन्होंने अपना एक और रिसाला निकाला था जिसका नाम था कलीम जो है वो उनका रिसाला था, जोश मलिहाबादी का। आगे बढ़ते, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं? किसी ख़ास मौजू पर जब हम लोग कोई तहरीर करते हैं तो उसे हम लोग मज़मून कहते हैं। ऑप्शन 3 47 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द हैं? सर सैयद अहमद खां के, शिबली नुमानी के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के या अल्ताफ़ हुसैन हाली के? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्लामा शिबली नुमानी के। और इन्होंने ही अपने उस्ताद की एक किताब थी जिसका नाम था सीरतुन नबी, उसे जो है वो क्या किया था? मुकम्मल किया था। आगे बढ़ते हैं, कसीदा बाबुल जन्नत का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। ताज़ा हवा में हवा क्या है? ये भी ग्रामर का सवाल है, यानी कि कवायद के हवाले से सवाल है। मौसूफ़ है, सिफ़त है, फ़ेल है या ज़मीर है? क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये मौसूफ़ है। सिफ़त क्या है? तो इसमें ताज़ा है, फ़ेल और ज़मीर जो है वो इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सज्जाद हैदर यलदरब किस ज़बान के माहिर थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तुर्की। इनका एक मजमून है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, बहुत ही क्या है, मशहूर भी है। अगला सवाल है, करबल कथा का मौजू क्या है? इंद्र सभा, रामायण, वाक़यात करबला
या इश्किया शायरी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाक़यात करबला। रामायण के मुसन्निफ़ का नाम आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में जो है वो आता भी है और पूछा भी जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं, उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है? तो नसर में जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबरस की करते हैं, जो 1635 में लिखी गई। अगर हिजरी पूछी जाए तो आप लोग 1045 बता सकते हैं। अल्लामा इकबाल किस सिंफ से ताल्लुक़ रखते हैं? नज़म से, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मिसरों का वो मजमूआ जिसमें मानवी राब्त और फ़िक्री तसलसल पाया जाए उसे क्या कहते हैं? नज़्म, गज़ल, मरसिया या मसनवी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नज़्म, क्योंकि यहाँ पे तसलसल पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। शेर कहने वाला क्या कहलाता है? शायर, मुसन्निफ़, दर्जी या उस्ताद? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शायर कहलाता है। अमीर खुसरो को हिंदी वाले अपना समझते हैं, हमदम, कवि, साथी या मददगार? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उनको वो कवि मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? मीर तकी मीर की, मुल्ला वजह की, हाली की या सर सैयद की? तो यादगार गालिब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, जो उन्होंने 1897 में लिखी थी, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए? मीर तकी मीर 1722 आगरा में पैदा हुए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, परिंदे की फरियाद किसकी नज़म है? गालिब की है, मीर की है, इकबाल की है या अल्ताफ़ हुसैन हाली की है? तो परिंदे की फरियाद ऑप्शन 3 हो जाएगा, अल्लामा इकबाल की। ऐसे गज़ल जिसके अशआर बाहम मरबूत हों क्या कहलाती है? गज़लिया, आज़ाद गज़ल, मुसलसल गज़ल या जदीद गज़ल? क्वेश्चन नंबर 61 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि वो मुसलसल गज़ल जो है वो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, उर्दू ने अपनी आगाज़ व इर्तिका का बाकायदा सफ़र कब शुरू किया? तो यानी कि 13वीं सदी में शुरू किया, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उर्दू की लिसानी तश्कील में किस बोली की बुनियादी हैसियत हासिल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली से ही उर्दू का जो है वो आगाज़ हुआ है। अगला सवाल है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मरकज़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? तो यहाँ पे मरकज़ी का पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी को दर्जा कब मिला। हालांकि वो कायम कब हुई? 1920 में, लेकिन दर्जा कब मिला गया, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1988 में। अगला सवाल, उर्दू ज़बान के मायने क्या हैं? तो लश्कर के हैं, ऑप्शन 2। फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह कब हुआ, यानी कि उसका आगाज़ कब हुआ? 1800 में हुआ और 1800 में 4 मई को हुआ। क्वेश्चन नंबर 67, किस सिन्फ में माफूकुल फितरत अनासिर की कारफाई होती है? क्वेश्चन नंबर 67 है, नावल में, अफसाना, दास्तान, नावल। ये ऑप्शन 3 जो है वो थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था, तो इसे छोड़ सकते हैं। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि दास्तान में। तज़ाद लफ्ज़ किसे कहते हैं? हम मायने अल्फाज को, उल्टे मायने अल्फाज को, मुज़क्कर अल्फाज को या खूबी बताने वाले अल्फाज को? तो तज़ाद का मतलब होता है उल्टे मायने बताने वाले को, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़्म है किरण का फूल, किस्सा चाह दरवेश, रामायण या बरक़े कलीसा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बरक़े कलीसा जो है वो अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, ये एक इक्तिबास है। इस इक्तिबास से जो है वो कुछ सवालात दिए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उम्मीद है कि इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। कुदरत ने कायनात के हर शे को एक ख़ास मखसूस मिक़दार और तनासुब में रखा है, लेकिन इंसान ने अपनी ज़रूरियात, ऐश व इशरत और ख्वाहिशात, नफ्सियात की तस्कीन के लिए इस कुदरती निज़ाम के तवाज़ुन को ख़राब कर दिया है, जिसके नताइज में वक्तन फ़वक्तन सैलाब, ज़लज़ला, तूफ़ान शदीद गर्मी, मुख्तलिफ़ इमराज़ व दबा की शक्ल में इंसान को ही भुगतना पड़ता है। नतीजतन इंसान को बलागत और बर्बादी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें तमाम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल माहौल को नुकसान पहुँचाए बगैर करना चाहिए। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए और आवाम में बेदारी लाने के लिए हर साल 5 जून को बैनुल अक़वामी यौम माहौलियत मनाया जाता है, यानी कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें पहला सवाल है कि कब मनाया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं 5 जून को। अगला सवाल है, कुदरती तवाज़ुन बिगड़ने से इंसान को क्या भुगतना पड़ता है? घर में रहना होता है, ज़लज़ला,
सैलाब व तूफ़ान या ये सभी? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन 4, ये सभी इसके ऑप्शन क्या हैं, दुरुस्त हैं। आगे बढ़ते हैं। कहाँ मैं ना पहचान कर मेरी जान, ये एक शेर है, आपको बताना है, पूरी एक नज़म है, तो इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई थी? 1877, ऑप्शन ए। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान इश्किया दास्तान है, रोमानी नावल है, ज़िंदगी के हालात पर मबनी है या शहीदों का मातम है? तो ये इश्किया दास्तान है, जिसमें शहज़ादा बेनज़ीर और बद्र मुनीर का क्या है, किरदार है। शायर मशरिक़ किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। अब्दुल हलीम शरर ने कौन सा रिसाला निकाला? ऑप्शन ए दिलगुदाज निकाला। कहाँ से निकाला? तो आप लोग बता सकते हैं कि ये लखनऊ से निकाला था। जिसमें सफ़र की रुदाद या हालात बयान किए जाते हैं उसे हम लोग सफ़रनामा कहते हैं। अहमद जमाल पाशा के तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ क्या है? ज़राफ़त व तनकीद, ऑप्शन 3 हो जाएगा। खून सफ़ेद किसका अफसाना है? कृष्ण चंद्र का, मुंशी प्रेमचंद का, साद हसन मंटू का या इस्मत चुगताई का? तो ये खून सफ़ेद मुंशी प्रेमचंद का है, अफसाना है। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसके ताउन से अंजुमन पंजाब कायम की? लॉर्ड मैकाले, कर्नल हार्लाइड, मोहम्मद अली बाकर या जॉन गिलक्रिस्ट? तो आंसर हो जाएगा कर्नल हार्लाइड। और कर्नल हार्लाइड ने ये किसे दिया था? डब्लू लाइटर को दिया था। DW लाइटर को इसकी जिम्मेदारी दी थी, जो उस वक़्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के क्या थे? प्रिंसिपल थे। और 1874 में जो है वो इसका पहला इजलास हुआ था। टोटल कितने इजलास हुए थे? 10, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शिरकत की थी 6 इजलासों में, और इसमें जो है वो बरखरुद जो है वो उन्होंने इसी के इजलास में पढ़ी थी, अंजुमन पंजाब लाहौर के इजलास में। आगे बढ़ते हैं। मीर तकी मीर ने उर्दू शायरों का तज़किरा किस में किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, निकातुश शोरा में। गालिब के अशआर के मजमू का नाम बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दीवाना गालिब, जिसको मुरतब किया है इम्तियाज़ अली खां अरशी ने। आगे बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो अकबर इलाहाबादी की वफ़ात हुई 1921 में। अब 1921 3 ऑप्शंस में है, लेकिन आगरा, मुंबई और इलाहाबाद, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इलाहाबाद में। आगे बढ़ते हैं। ये शेर आपको बताना किसका है? दुनिया अजब बाज़ार है, कुछ जिन्स यहाँ के साथ ले, नेकी का बदला नेकी है, बद से बदी की बात है। तो ये नज़्म है नेकी और बदी, नज़ीर अकबर आबादी की, उसी से ये अशार लिया गया है। खुदाए शुक्र मीर तकी मीर को कहा जाता है। कौन सी किताब फ़ारसी शायरी से मुताल्लिक़ है? शेरुल अजम, तर्जुमुल कुरान, तौबतन नसूह या फिर दो से बरी? तो फ़ारसी शायरी या फ़ारसी की तारीख़ में किसको बात की गई है? शेरुल अजम। और ये जो है वो अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ है, और इसको जो है वो 5 हिस्सों में जो है वो क्या किया गया है? तकसीम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कहाँ से निकलता था या कहाँ से शाये होता था? बनारस से 1870 में निकलना शुरू हुआ, जिसके मुदीर का नाम था सर सैयद अहमद ख़ान। आगे बढ़ते हैं। कॉमरेड किसका अखबार है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, मौलाना शिबली या हसरत महानी? तो आंसर हो जाएगा ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का अखबार है। कॉमरेड के अलावा एक और रिसाला है हमदर्द, ये भी किसका है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। किस सिन्फ में ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है? दास्तान में, मसनवी में, 12 मासा में या अफसाना में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अफसाना में, जिसको एक नशिस्त सिन्फ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वासोख्त के मुअज्जिद या बानी कौन है? ख्वाजा हैदर अली आतिश, मोहम्मद शिराजी, मीर तकी मीर या मौलाना शौकत अली? तो आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। और ये बात किसने कही है? ये बात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कही है। किस में कही है? अपनी किताब आब हयात में कही है। और आब हयात 1880 में शाये हुई। कौन से बाब में कही है? तो आप लोग बता सकते हैं 3रे बाब में कही है, क्योंकि मीर तकी मीर का जिक्र 3रे बाब में है। वो अफ़ाइल जो इल्म उरूज़ में बुनियादी हैसियत रखते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सालिब कहते हैं। मल्लिका विक्टोरिया का मरसिया के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्ताफ़ हुसैन हाली।
अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो है वो 5 शख्सी मरसी लिखे हैं, जिसमें मल्लिका विक्टोरिया का भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। सानेट में कितने मिसरे होते हैं? 14, 15, 19 या 12? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। दक्कन से उर्दू इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन 3। मशरक़ी हिंद की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं? तो मगरबी हिंद की बोलियाँ 5 हैं, और इन 5 बोलियों में पहले आती है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के बाद खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद हरियाणवी, हरियाणवी के बाद कन्नौजी, और कन्नौजी के बाद बुंदेली, ये आते हैं, जिसमें खड़ी बोलियों को हम लोग बांगड़ू के नाम से भी जानते हैं और जाटू भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आब हयात कितने अबवाब में तकसीम किया गया है? ऊपर आपको बताया था 5, ऑप्शन 3। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब आब हयात है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। उर्दू की इब्तिदा कहाँ हुई? तुर्की में, अरब में, शुमाली हिंद में या यूनान में? तो उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की पहचान है, तो ये शुमाली हिंद में पैदा हुई। कब हुई? ऊपर हमने अभी बताया था 13वीं सदी के आसपास इसका जो है वो क्या होता है, आगाज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू अदब में अहयाम गोई की तहरीक कितने अरसे तक जारी रही? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन ए 25 साल। और अहयाम गोई के रद्द अमल में किसने काम शुरू किया? तो आप लोग बता सकते हैं नासिक ने, और शुरू की इस्लाही तहरीक। ठीक है, इस्लाही तहरीक के बानी किसको माने जाते हैं? नासिक को। लेकिन एक सवाल यह आता है कि अहयाम गोई के ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई? तो आप लोग बता सकते हैं मिर्ज़ा मजहर जाना ने। क्वेश्चन नंबर 100, ख्वाजा हैदर अली आतिश कब पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 100 है, ऑप्शन 2 हो जाएगा 1778, जिनको दबिस्तान लखनऊ का बाकायदा बानी माना जाता है। दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? नसीरुद्दीन हाशमी। मीर तकी मीर की लिखी हुई आप बीती का नाम क्या है? यानी कि उनके खुद नविस्त का नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा ज़िक्र मीर, जो उन्होंने फ़ारसी ज़बान में लिखी है 1772 में। खड़ी बोली में किन किन बोलियों की आमेजिश पाई जाती है? पंजाबी, ब्रज भाषा, हरियाणवी या ये सभी? तो खड़ी बोली के ताल्लुक जो है वो मंदर ज़िल में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, यानी कि ये सभी। सिराज औरंगाबादी के कुलियात का नाम क्या है? तो कुलियात सिराज जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन 3। भारत का पहला अंग्रेज़ी रोज़नामा किसने जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जेम्स ऑगस्टे हिक्की ने, और उसका नाम था क्या? बंगाल गेजेट। ठीक है, और ये हिंदुस्तान का पहला अखबार था, और अगर अंग्रेज़ी का पूछा जाए तो अंग्रेज़ी का भी यही था। उर्दू का आपको मालूम है, जिसके हम लोग जानते हैं, मौलवी मोहम्मद बाकिर का या जामे जहानुमा। इसके अलावा अगर हिंदी का पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं, उसका नाम था उत्तंड मारतंड। ठीक है, जो किसने निकाला था? शुक्ल जी ने निकाला था, और ये भी कलकत्ता से ही निकला था। अगला सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का जो है वो पहला साहिब दीवान शायर है। कयास के मायने क्या है? नापसंद, कमतर, अंदाज़ा या भरोसा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अंदाज़ा। सौदा का पूरा नाम क्या है? सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत कहाँ हुई? तो दक्कन में हुई, और उर्दू के जो पहले साहिब दीवान शायर हैं, जिनका नाम है मौलवी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उन्हीं को जो है वो शुरुआत का श्रेय जाता है, ऑप्शन ए। मशहूर कसीदा गो का नाम बताइए जिसने कसीदों को बुलंदियों तक पहुंचाया? तो आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। कसीदा के लुग़वी मायने क्या है? इजहार करना, मग़ज़, दिल, आँखें? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मग़ज़ गलीज़। मौलाना शिबली नोमानी की मशहूर किताब कौन सी है? तो शेरुल अजम है, ऑप्शन 2 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तहज़ीबुल इखलाक रिसाला किसने निकाला? तो ये सर सैयद ने निकाला था 1870 में बनारस से। फसाने अजाइब किसकी दास्तान है? मीर अमन की, मुल्ला वजी की, रजब अली बेग सुरूर की या मीर तकी मीर की? आंसर हो जाएगा रजब अली बेग की सुरूर की तसनीफ़ है फसाने अजाइब, जो लिखी कहाँ गई है? कानपुर में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा के बाद किसी का नाम लिया जाए तो वो हो सकते हैं फ़ानी बदायूनी, ज़ौक़ दहलवी, गुलज़ार नसीम या आल अहमद सुरूर? तो आंसर हो जाएगा ज़ौक़। क्वेश्चन नंबर 116 है दुनिया जिसका नाव मियाँ
یہ اور طرح کی بستی ہے جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ اس شعر کے خالق کون ہیں؟ مرزا محمد ہادی رسوا، برج نارائن چکبست، مومن خاں مومن یا نذیر اکبر آبادی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یہ نذیر اکبر آبادی کی شعر ہے یا اس نظم سے لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس میں عوامی شاعر کون ہے؟ تو عوامی شاعر ہم لوگ نذیر اکبر آبادی کو مانتے ہیں، آپشن اے۔ میر حسن کی مشہور مثنوی کون سی ہے؟ باغ و بہار، گلزار نسیم، گل بہار یا شہر البیان؟ آنسر ہو جائے گا 4، یعنی کہ شہر البیان۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو غزل کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو غزل کا امام ولی دکنی کو کہا جاتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو آپشن تو ولی دکنی نہیں ہے۔ اب اکارڈنگ ٹو آپشن بھی ہمیں لگانے ہیں، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ میر تقی میر کو اردو غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ آپشن کے اکارڈنگ بھی ہم لوگ سوال کو سولو کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، شمالی ہند میں اردو کا پہلا شاعر کون ہے؟ کاشفی، فائز دہلوی، فضل علی خاں فضلی یا انشا پردراس؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ جعفر فائز دہلوی۔ اگر آپشن میں آپ لوگ یہاں پر جعفر جٹلی دیکھتے ہیں تو آنسر آپ کو جعفر جٹلی بھی لگانا پڑ سکتا تھا، لیکن آپشن میں نہیں ہے تو فائز دہلوی کریکٹ ہو جائے گا۔ سبرس کا تخلیق کار کون ہے؟ ملا وجی ہیں۔ کربل کتھا کے مصنف کا نام بتانا ہے، فضل علی خاں فضلی، آپشن 3 ہو جائے گا۔ کس زبان کو دو سگی بہنیں کہا جاتا ہے؟ انگریزی و اردو، اردو و ہندی، ہندی اور ہندوی، فارسی و اردو؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، اردو و ہندوی۔ تو یہاں پہ صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2۔ کربل کتھا کس فارسی کتاب کا اردو میں ترجمہ ہے؟ تو یہ کتاب روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے، آپشن 2۔ آگے بڑھتے ہیں، میر امن دہلوی سے کون سی کتاب منسوب ہے؟ کنج خوبی، باغ و بہار، غودان یا امراؤ جان ادا؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، گنج خوبی۔ ان کی دوسری کتاب کا نام ہے میر امن کی باغ و بہار، کیونکہ انہوں نے 2 ہی تصنیف لکھی ہے۔ تو اس طریقے سے آج آپ کے جو ہے وہ پورے ٹیسٹ ہوئے، مکمل ہوئے۔ آپ کا جو ہے وہ اب ایگزام بھی ان قریب ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ماڈل پیپر اور آپ کو پرووائڈ کرائے جائیں تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں جو ہے وہ ضرور یس لکھ دیجیے گا، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کو اور ماڈل پیپر جو ہے وہ پرووائڈ کرائے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ایگزام سینٹر کہاں پر گیا ہے، ود نیم آپ کو بتانا ہے، جیسے کہ یہاں پہ اسکول کا نام ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی کوئی سے بھی ڈسٹرکٹ کا نام، چاہے وہ لکھنؤ ہو، چاہے وہ پریاگ راج ہو، چاہے وہ میرٹھ ہو، چاہے وہ غازی آباد ہو، اس طریقے سے آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ سے معطل درخواست ہے کہ کومنٹ باکس میں ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ہمارے یہ موک ٹیسٹ کیسے لگ رہے ہیں۔ اور شروعات میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ای بک ہے، اس میں تقریباً 3000 کوشچنس ہیں، جس میں آپ کا MCQ ہے، جس میں آپ کا PYQ ہے، جس میں آپ کی ماڈل پیپر ہے۔ تو یہ تینوں آپ کو جو محض 99 روپے میں مل جائیں گے۔ لینے کے لیے آپ لوگ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ای بک فراہم کرا دی جائے گی۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی، شکریہ۔